Dear students, welcome back to my channel. Today I will continue formation of image in lens. As you know, we have two types of lens. One is convex lens, other is concave lens. Do you know in convex lens there are 6 cases how the image is formed in convex lens for different position of the object. First, if the object is at infinity, the image will be at the focus. You see, for the convex lens, this is the first focal point, this is the second focal point. This is f1, this is f2. ये याद रखना. लेकिन कभी-कभी हम इसको simply f लिख देते हैं because this distance equal to this distance. Okay, in college this is taken as in many books f, but here I don't know in your book that is f1 and f2 mentioned, so you have to follow. So f2 image is at f2, that is really inverted and highly diminished to a point. So object is beyond 2f. This is f1, this is 2f1. If object is beyond 2f1, the image is between f2 and 2f2. The image is real inverted and enlarged. ये पहले का बिंदु जैसे था, पॉइंट जैसे, अभी थोड़ा बड़ा साइज हुआ. When object is at 2f1, ये object 2f1 image होता है 2f. Okay, the image is real inverted and same size. मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ difference between real image and virtual image. Real image is always inverted. Real image can be obtained on a screen. Virtual image is always erect. Virtual image cannot be obtained on a screen. Okay, कभी कभी क्वेश्चन आता, what is the difference, what is the distance between the real image and the object? Minimum distance between the real image and the object in case of a convex mirror. This is very important question. So minimum distance between the real image and the object in a convex mirror is 2f plus 2f, 4f. Minimum distance between the object and the real image of a convex mirror is 4f. Okay, then the object is between f1 and 2f1. वो समान पहले बिंदु था, एक पॉइंट था, ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ, फिर समान हो गया. अभी समान होने के बाद फिर बड़ा होने लगेगा. ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 and 2f1, इमेज इज बियॉन्ड 2f2, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड. देन ऑब्जेक्ट इज एट f1. जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में था, इमेज होता था f में. ऑब्जेक्ट अभी f में, इमेज होगा इंफिनिटी में. तब real inverted and highly magnified. Okay, then this one very much important. So this is the only case where virtual image is obtained virtual and magnified. If object is between f1 and the optical center of the lens, then the image you see at center of curvature होके जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर होके ऑन डाइवर्टेड सीधा जाएगा. एक होगा ऐसे चला गया, इसके बाद प्रिंसिपल फोकस में पास करेगा. तो इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, दैट इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड. कभी कभी क्वेश्चन वही आता है. सो नेम द प्रिंसिपल or define the principle on which a simple microscope works or magnifying glass works. A magnifying glass or a simple microscope works on the principle that when an object is placed between the principal focus and optical center of a convex lens, then the image will become virtually erect and magnified, which will form on the same side of the object. Okay, so this is very important. Then concave lens. In case of concave lens, when the object is at infinity, this is the diverging lens. The image will be at the focus, real inverted and diminished to a point. Virtual, erect and diminished to a point. Then this one very important. Object is anywhere between the lens and the infinity. Anywhere. So image will always fall between the focus and optical center, virtual, erect and small size. Okay. Then this lesson will complete. You just remember,
सो तुम्हारा जानकारी के लिए मैं थोड़ा बताता हूँ, तब ये चीज तुम्हें याद रखना। F1 ये सपोज 2F1 देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ये इमेज याद रखना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन ए नेगेटिव, भले वो कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो। इमेज कॉनकेव कॉन्वेक्स में सब केस में इमेज होगा पॉजिटिव राइट साइड। इमेज डिस्टेंस भी इमेज डिस्टेंस, खाली एक केस में जो वर्चुअल इमेज वो होगा नेगेटिव, क्योंकि सेम साइड में रहेगा लेफ्ट साइड। ओके, ये फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में ये होता है, कॉन्वेक्स में एफ इज ऑलवेज नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव कॉन्वेक्स में एफ होता है नेगेटिव, कॉन्केव में एफ होता है, उल्टा को बोल दिया, कॉन्वेक्स में एफ होता है पॉजिटिव राइट साइड में रियल फोकस, कॉन्वेक्स में एफ होता है पॉजिटिव, कॉन्केव में एफ होता है नेगेटिव। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि पावर ऑफ द लेंस में ये काम पे लगे। कॉन्वेक्स में एफ होता है पॉजिटिव, कॉन्केव में एफ होता है नेगेटिव। ओके, देन ये हम देखेंगे, ये हो गया, तो ये वैल्यू हम इसी में डालेंगे। खाली एक चीज ही रहा, तो मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन m इक्वल टू I बाई O इक्वल टू V बाई U। ओके, तो अब U हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये नेगेटिव होगा तो हम नेगेटिव लेंगे, ये पॉजिटिव हो सकता नेगेटिव हो सकता, जो होगा हम लेंगे। ये चीज तुम्हें बताया नहीं, कॉन्केव में V हमेशा नेगेटिव है। ओके, कॉन्केव में U नेगेटिव, V नेगेटिव और F भी नेगेटिव। कॉन्केव में खाली इतना याद रखना, कॉन्केव में तीनों नेगेटिव, कॉन्वेक्स में खाली लास्ट केस को छोड़ के V और सब V पॉजिटिव, U तो नेगेटिव होता है, F पॉजिटिव होता है। ओके, इसमें I अगर ऐसे रहेगा ऊपर, तो अब ये वर्चुअल इमेज ये होगा पॉजिटिव, I अगर नीचे रहेगा रियल इमेज ये होगा नेगेटिव। O इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि वो हमेशा ऊपर ही रहता है। ओके, तो अब ये मैग्निफिकेशन हम निकालेंगे, इसके आधार पर हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। An object of height, an object of height 4 centimeter is placed at a distance of 24 centimeter in front of a convex lens, in front of a convex lens of focal length 80 centimeter. Calculate bit 1 position and size of image, bit 2 characteristics of image. देखो, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर आंसर। फर्स्ट हम लिखेंगे कौन सा लेंस, इन फ्रंट ऑफ ए पहले लिख देना एग्जाम में ऐसे कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो अब ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, वो ऑब्जेक्ट हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर, तब ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर
इक्वल टू -24 सेंटीमीटर। यू हमेशा माइनस कोई भी लेंस में हो। और फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स के लिए एफ होता है हमेशा पॉजिटिव। एफ होता है इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। तो हम बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v इक्वल टू 1/u प्लस 1/f implied 1/v equal to -1/24 plus 1/8। तो 24 एलसीएम हुआ -1 plus 3 equal to 2/24 imply the v equal to 12 सेंटीमीटर। तो v हो गया 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर दैट इज v प्लस आया। हमें लिखना पड़ेगा द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। ओके, देन हमें निकालना क्या होता है माने साइज ऑफ द इमेज। तो इमेज साइज हम जानते m इक्वल टू m होता है v बाई u इक्वल टू i अपॉन o। ओके, इम्प्लाइड v कितना है, v होता है कॉन्वेक्स लेंस, ये होता है तो v होगा i अपॉन o। i कितना है, i निकालना है, वो होता है हमेशा पॉजिटिव। वो इक्वल टू v आया, v पॉजिटिव आया मतलब बिहाइंड, ये जरूर रियल इमेज। ओके, तो v तो मैग्निफिकेशन भी रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव आता है और वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव आता है। इक्वल टू हम करेंगे v राइट साइड में आता है अपन u कितना, u होता है -24 इम्प्लाई i इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। माइनस indicates that the image is the arrowhead of the image is downward। ओके, इसीलिए माइनस आया। ओके, then the image is real, inverted and पता है ऑब्जेक्ट का साइज एंड डिमिनिश्ड, इसका साइज कम हो गया। ओके, ये कॉन्वेक्स का हो गया। एक कॉन्केव का देखते हैं, एक कॉन्केव का भी कर देता हूं। ओके, an object is placed in देखो, दो न्यूमेरिकल करने पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तुम खुशी हो जाएंगे। ओके, सॉल्यूशन पहले लिखना, आंख बंद करके लिखना, कौन सा लेंस, कॉन्केव, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, an object is placed at a distance of 10 centimeter, u is always negative -10 centimeter। फोकल लेंथ ये कॉन्केव का होता है नेगेटिव -10 सेंटीमीटर।
no tangent, okay. Then position using lens formula, VAP 1 by V equal to 1 by U plus 1 by X implies 1 by V equal to minus 1 upon 10 minus 1 upon 10 equal to minus 2 upon 10 implies V equal to आ गया माइनस 5 सेंटीमीटर। तो कॉन्केव का व्यू हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि लेफ्ट साइड में फॉर्मेशन होता है इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ओके, देन यूजिंग m इक्वल टू I अपॉन O इक्वल टू V अपॉन U। ओके, तो हम कहेंगे इम्प्लाइज I अपॉन U O इक्वल टू V कितना है -5, U कितना है -10 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इम्प्लाइज I इक्वल टू 2I इक्वल टू O 2I इम्प्लाइज I इक्वल टू O अपॉन 2 मतलब साइज ऑफ द इमेज इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द इमेज will become half of the size of the object। ओके, खाली थोड़ा सा 2 मिनट कॉम्प्रोमाइज करना। मैं दूसरा चीज बता देता हूँ, पावर ऑफ ए लेंस। इसमें कुछ नहीं है। पावर ऑफ ए लेंस power of a lens is the reciprocal of focal length, where focal length is expressed in meter। Power of a lens is the reciprocal of focal length, where f is expressed in meter। पावर का यूनिट होता है ऐसा यूनिट डायोप्टर और कैपिटल डी वही होता है। ओके, तब मैं बताता हूँ एक क्वेश्चन कर देता हूँ। द पावर ऑफ ए लेंस इज -2 डायोप्टर। -2.0 डायोप्टर, जो हम -2 ग्लास यूज करते हैं। फाइंड इट्स फोकल लेंथ एंड काइंड। length and kind। ओके, इसका फोकल लेंथ निकालेंगे और ये कौन सा ये होता है हम वो देखेंगे। तो P इक्वल टू 1 by F इन मीटर। तो P -2 दिया हुआ है, इम्प्लाइज -2 इक्वल टू 1 by F। F जो आएगा इन मीटर आएगा, इम्प्लाइज F इक्वल टू -½ मीटर इक्वल टू -½ इंटू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। F माइनस मतलब दिस इज ए कॉन्केव लेंस। ओके, so this one completed। Then the next question कॉन्वेक्स का कर देंगे, एक होता है द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस is 25 centimeter। Express its power and size। P equal to 1 upon F, P equal to 1 by F in meter।
F is given 25 सेंटीमीटर, तब इसको मीटर को चेंज करना है 0.5 मीटर, इम्प्लाई P इक्वल टू, ये F पॉजिटिव रहेगा कॉन्वेक्स के लिए। ओके, ये तो जरूर कॉन्वेक्स, क्योंकि पावर पॉजिटिव मतलब F भी पॉजिटिव। P इक्वल टू 1/0.25 इक्वल टू 100/4 इक्वल टू 100/25 इक्वल टू 4 डायरेक्टर, ये कॉन्वेक्स लेंस। ओके, 4 डायरेक्टर हुआ, ये हो गया तुम्हारा, बिकॉज ये प्लस आया, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। सो एनी हाउ टोटल चैप्टर I completed today. Hope you will go through this chapter and will be benefited a lot. Okay. Thank you very much.